Are you struggling to communicate with your classmate? Are you scared of giving that presentation in front of the class? Are you scared to make that conversation with your colleague wherever you're interning or doing a job, even after being a graduate in English or completing your 12th with ICSE, CBSE board, still you struggle with English? Why that happens and how you can improve that, I'm going to tell you in this video, guys, that there are a lot of ways that you can improve your spoken English and you can be fluent at it by doing or following these small steps. Make sure, guys, that you watch the video till the end to know how you can overcome your fear of talking in English and improve your spoken English. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, be it your courses, college, internship, jobs, anything. So make sure that you subscribe to my channel to get all the amazing updates. Sometimes you might be wondering कि English important है क्या? नहीं आता है तो क्या हो गया? But at times when you really struggle for that, first presentation and about your impression in front of the whole class, in front of your colleagues and everybody, तब आपको realize होता है कि यार मैं इतनी अच्छी English क्यों नहीं बोल सकता like my other classmates. And as I'm getting, messages in my inbox as well, jahan pe, when you come to Mumbai from a different state, and especially you get admission in South Bombay colleges or Western Mumbai ke colleges, students are like, ma'am, यहाँ पे ना sobo crowd है, मैं इनसे बात नहीं कर पा रहा. So guys, we'll talk about कि spoken English को, like आपकी जो language है, that whatever language you're talking, and especially when we're talking about English, that is hardly any percent, 7 to 10%. But rest of the thing is your confidence, it's your body language, it's your eye contact and sort of things. So if you work on those factors, English तो क्या है यार, जितना बात करोगे वो improve होती चली जाएगी. So guys, basic step तो आपको already पता होंगे, जो मैंने आपको reels वगैरह में भी बताए, that reading is important. अगर अभी तक आप reading नहीं करते हो तो please start reading, it will surely help. Beat newspaper, अगर newspaper बहुत ही बोरिंग लगता है, स्टार्ट रीडिंग लव स्टोरीज. अगर लव स्टोरीज बहुत बोरिंग लगती है तो स्टार्ट रीडिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक. कुछ तो पढ़ो, बेसिक वाली बुक पढ़ो, बट स्टार्ट रीडिंग. सेकेंड इज लिसनिंग. लिसनिंग से क्या होता है, आपको काफी सारा सेंटेंस फ्रेमिंग समझ में आता है. सो जब आप दो लोगों का कन्वर्सेशन सुनते हो या स्पीच सुनते हो, इट हेल्प यू टू टॉक इन द सिमिलर वे. सो अनकॉन्शियसली आप कहीं ना कहीं उन चीजों को इमिटेट करते हो. सो व्हाट हैपेंस इज whosoever is your favorite actor, whosoever is your favorite speaker या news anchor or anybody, start listening to them. So what happens is you will improve your reading and listening. Then after that you can start speaking in front of say camera or in front of the mirror. It helps boosting your confidence. So आपने दो स्टेप कर लिया, रीडिंग का, लिसनिंग का. उसके बाद राइटिंग तो एक कंपोनेंट है, बट एट टाइम्स क्या होता है, राइटिंग जो इम्प्रूविंग राइटिंग इंग्लिश इज कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम देन स्पोकन इंग्लिश. कई बार ऐसे भी केसेस होता है, पर्सन हु इज वेरी गुड विद कम्युनिकेशन, लाइक वर्बल उसका स्किल्स बहुत अच्छा है, बट राइटिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं होती. एंड द सिमिलर पर्सन व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और फ्रंट ऑफ द पीपल, वो इतनी सही तरीके से बात नहीं कर पाते. सो ये फैक्टर्स अगर आप में हो सो चिल मारो, ये बहुत कॉमन है, होता है. अगर आप अच्छे स्पीकर हो, जरूरी नहीं आप अच्छे राइटर भी हो. सो दोनों स्किल्स अलग अलग है. सो स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको सुनना और रीड करना बहुत जरूरी है. राइटिंग तो चलो आप पॉइंटर्स में लिख सकते हो. देन स्पीकिंग के लिए एज आई सेड कि कैमरे के सामने बात करना एक अलग ही आर्ट है, लाइव ऑडियंस के सामने बात करना एक अलग ही आर्ट है. बट दोनों के लिए आपको बात करना पड़ेगा. आइदर यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ और स्टार्ट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर श्योर. Now let's talk about starting that conversation or while presentation, get out of their fear. The first thing is don't be scared of making mistake. जितना आप मिस्टेक करोगे उतना सीखोगे. हम सबका जो प्रोनाउंसिएशन है, स्पेशली ऑल ऑफ अस इंडियन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट इंग्लिश. यहाँ तो ऐसा होता है कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है, बट आई टेल यू वन थिंग, केरला की इंग्लिश और महाराष्ट्र का इंग्लिश और यूपी का इंग्लिश सब अलग अलग है. यू कांट बीट दैट. मतलब अगर यूपी वाला इंग्लिश बोले तो उसमें एक अलग फ्लेवर होगा, महाराष्ट्र वाला बोले तो उसमें मराठी फ्लेवर होगा, केरला वाला बोले तो तुम भाषा से ही समझ जाओगे भाई ये साउथ इंडियन इंग्लिश है. So don't be scared. It's completely all right. You will have that accent unless and until you work on it. So, when Indians go to Canada or Indians go to America, they start putting up this accent, British accent.
तो वो चलता है, मतलब यू नो दैट इज फाइन. तो इंडियन एक्सेंट भी है, इंडियन एक्सेंट तो छोड़ दो, हमारा स्टेट एक्सेंट भी है, तो इट्स फाइन. यू विल ग्रेजुअली learn how to overcome that because of your surrounding, because of how your teachers have been teaching. So I'll give you a funny incident. As I've always told कि मेरे स्कूल में लाइब्रेरी नहीं थी. Now talking about our teachers used to teach us tomato, potato. So वहाँ पे फोनिक्स करके एक चीज़ है जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है इन जूनियर केजी, सीनियर केजी. हमारे टाइम पे तो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक भी कुछ भी पढ़ाते थे, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो टीचर का जैसा है. मराठी टीचर है तो मराठी के हिसाब से पढ़ाएगी, हिंदी टीचर हिंदी के हिसाब से पढ़ाएगी. सो दैट इज वेयर the struggle comes in. So if you're not scared to make mistake, it's perfectly all right. You can make mistake, then people will rectify it. ज़्यादा क्या होगा, कुछ बेवकूफ लोग आप पे हंसेंगे ना, let them laugh. Any which ways they're gonna laugh. So if they laugh, still you have to learn to ignore. तो अगर जो कोई अगर आपको आके सही करता है वो आप सुनिए. अगर आपको लगता है आपको खुद से परफेक्ट होना है, आजकल तो बहुत ही सिंपल, देयर आर एप्स अवेलेबल. देयर इज गूगल अंकल, गूगल आंटी, जो भी आप उसे बोल लो, द बेस्ट फ्रेंड. अगर आपको लगता है कि मुझे प्रोनाउंस करने में मैं सही या गलत कर रहा हूँ, मुझे पूछने के लिए शर्म आ रही है, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट type that word or speak that word on your phone. The Google will tell you exact pronunciation of that word. So that you can do अगर आप कहीं पे भी रीडिंग में अटक रहे हो तो. As I said, when you practice, तो ये चीज़ आप यूज कर सकते हो. कहीं पे भी अगर आप प्रोनाउंसिएशन में अटक रहे हो, यूज गूगल. आप जस्ट जाके टाइप करो, you will get the proper pronunciation. Secondly, when you are practicing, अब प्रैक्टिस करने के कई तरीके होंगे. कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैम प्रैक्टिस तो आप बोल रहे हो करो, बट करें तो करें क्या. What you can do is, as I told you, कि आप पॉडकास्ट सुन रहे हो या फिर आप कोई भी न्यूज़ एंकर को सुन रहे हो, एक्टर को सुन रहे हो, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हो, आप वो सुनो, पॉइंटर्स लिखो एंड उसी स्पीच को अपने लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करो. नाउ व्हाई दैट हेल्प्स, बिकॉज यू आर पैराफ्रेजिंग, यू आर इमिटेटिंग द सेम थिंग. एक तो आप छोटी छोटी लाइनें सेम तरीके से बोल लोगे. दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक बंदे ने जो वर्ड यूज किया है तो अब आपको वो स्पीच समझ गए, बट जब आप अपनी तरह से कन्वे करोगे तो हो सकता है आप कुछ वर्ड जो वो बंदे ने यूज किया आप वो यूज नहीं करोगे. व्हाई? बिकॉज दोज वर्ड्स वेर हैवी, यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. आपने डिक्शनरी से उसका मीनिंग देखा, बट व्हेन यू विल से दैट थिंग यू विल सिंप्लीफाई इट, बिकॉज आप अभी सीख रहे हो और आपको लगेगा कि आप ही की तरह लोग होंगे जो शायद वो वर्ड नहीं समझ पाएंगे, तो आप उसे सिंप्लीफाइड इंग्लिश में बोलोगे जो आपको भी समझ आ रही है और आपको लग रहा है ये काफी कॉमन वर्ड है, तो आप ये भी कर सकते हो. एंड gradually, as you improve in your basic paraphrasing and imitating and talking, small speeches, same thing with the presentation. So when you're making a formal presentation, try using the lingo of any topic that you're presenting. So अगर आपका management पे presentation है तो आप वो जो वर्ड्स है ना, टेक्निकल वर्ड्स, आप डिक्शनरी में पहले उसका मीनिंग समझिए, फिर उसको प्रॉपरली यूज करिए. दिस ऑल थिंग विल नॉट हैपन ओवरनाइट. यू विल हैव टू प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इम्प्रूव करोगे. सो व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ वीडियोज ना, लर्न इंग्लिश इन 1 week, 1 month, ऐसा नहीं होता है. टेक योर टाइम, रीड. It might take 1 month, it might take 6 months, it might take a year. जैसा आपका सराउंडिंग होगा, जैसे आपके आजू बाजू लोग होंगे, आप धीरे धीरे सीख जाओगे. और कहीं पे अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, इफ यू गेट स्टक विद योर लैंग्वेज, लेट मी टेल यू, लैंग्वेज इज नॉट नॉलेज. सो जहाँ पे भी आप स्टक हो रहे हो वहाँ पे आप अपने कॉन्फिडेंस से बात करो, आप अपने नॉलेज से बात करो. मतलब उस टॉपिक को आप हिंदी में भी बोलोगे, कोई फिरंग की औलाद तो है नहीं. इंडिया में आप हो, इंडिया में बात कर रहे हो, हिंदी में तो समझ ही आएगा. Yes, so you can take a permission, sir, ma'am, can I talk in Hindi? If you're confident, do that way. Make an eye contact, use your body language and go ahead with that. English, over the period of time, you will learn. So जो भी मैंने आपको points बताए वो थोड़े से implement करो, it will for sure help you. Also, one thing guys, if you're finding it difficult to do it on your own, we are soon starting with a 1-month program of improving your communication skills where we will teach you everything step by step, like reading, writing, listening, कैसे करना है. We have designed an amazing program for you where you can learn grammar to reading, everything. So how to improve your communication skills, वो program बहुत ही जल्द launch हो जाएगा channel पे. Stay tuned for that. Community post पे सारी update आ जाएंगी. Media Mentor का app है, उसी पे ये course run होने वाला है. So guys, stay tuned for that information as well on the channel. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such amazing videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.